नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, थर्ड सेमेस्टर एंड अदर्स सेमेस्टर from Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our lesson session is three parts and functions of the government. Introduction. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Government is the institution through which society makes and implements its public policies. It is the agency through which the state fulfills its will and works to fulfill its goals. Three parts and functions of the government. The legislature, executive and judiciary are the three parts of government. Three functions are set to prevent any possible measure of power. In particular, the judiciary is always kept separate and independent from the legislature and the executive. However, this does not mean that the judiciary should not have any relationship with the legislature and the executive. Members of the executive are also members of the legislature in the parliamentary form of government, and they play the dual role of legislature in the legislature and as heads of government departments like ministers. Active legislative control over the executive is done through a spate of questions, call attention motions, cut motions, etc. The legislature and executive can each case dissolution of the other. The legislature and executive have separate institutions in the presidential model. The principle of separation of powers governs their relationship. The executive is not directly responsible for the legislature. It remains independent of legislative interventions. It is not directly accountable to the legislature. In this model, both organs have definite and definite confidential conditions. Neither the legislature can easily remove the executive nor can the executive dissolve the legislature. The executive has an important role in the functioning of the organization and the judiciary. Judiciary appointments are currently considered by the executive to be the best available method. Many times the executive with the legislature plays an important role in removing judges through impeachment.
The judiciary has the supreme task to try and judge whether a person is actually guilty of the charges levied against him or not. It is the executive's responsibility to execute the award of punishments to the offender for efficient enforcement of judicial judgment. In all democracies around the world, the executive is under the jurisdiction of the courts. The judiciary is closely related to the legislature because the laws made by the legislature are in practice and enforced by the courts. The judiciary has the power to determine the validity of laws in all democratic countries through the power of judicial review. The powers of the legislature in India are exercised by the Parliament, a bicameral legislature consisting of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Of the two houses of parliamentary, the Rajya Sabha is considered the upper house or council of states and consists of members appointed by the president and elected by the state and regional legislatures. The Lok Sabha is considered to be the lower house or the house of the people. Parliament does not have full control and sovereignty in parliamentary governance as its laws are subject to judicial review by the Supreme Court. However, it exercises some control over the executive. Members of the cabinet, including the Prime Minister, are either elected from Parliament or elected within 6 months of assuming office. The cabinet as a whole is responsible to the Lok Sabha. The Lok Sabha is a temporary house and can be dissolved only when the party in power loses the majority support of the house. Rajya Sabha is a permanent house and can never be dissolved. Rajya Sabha members are elected for 6 years. Principles of power separation. The main thinker of the principle of power separation is Montesquieu. Montesquieu divided the functions of governance into 3 parts: the legislature to enact legislation, the executive to implement the law, and the judiciary to interpret the law or punish those who violate the law. Montesquieu forbade the aggregation of the 3 powers in one hand. He believed that if the powers were in one or a few hands, it would lead to an apocalypse, meaning that it would not be in the public interest. This session prepared by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University जयपुर राजस्थान। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी में। स्टूडेंट्स लर्नर्स, आज का जो सेशन है वो है सरकार के अंग और कार्य, इंट्रोडक्शन और कार्य आंशिक रूप से, ठीक है। आगे की वीडियो में हम विस्तार से कार्यों को देखेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। सत्ता के किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए
3 कार्यों को अलग अलग रखा गया है। विशेष रूप से न्यायपालिका को हमेशा विधायिका और कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा जाता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सरकार वो संस्था है जिसके माध्यम से समाज अपनी सार्वजनिक नीतियों को बनाता है और लागू करता है। ये वो एजेंसी है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा पूरी करता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि सरकार के संसदीय रूप में कार्यपालिका के सदस्य भी विधायिका के सदस्य होते हैं और वे विधायिका में और सरकारी विभागों के प्रमुख यानी मंत्री के रूप में विधायकों की दोहरी भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका पर सक्रिय विधायी नियंत्रण सवालों की झड़ी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कट मोशन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका या कार्यकारी प्रत्येक दूसरे के विघटन का कारण बन सकते हैं। राष्ट्रपति के मॉडल में विधायिका और कार्यपालिका की अलग अलग संस्थाएं होती हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। विधायिका के लिए कार्यपालिका कार्यकारी सीधे जिम्मेदार नहीं है, यह विधायी हस्तक्षेपों से स्वतंत्र है। यह विधायिका के लिए सीधे जवाबदेह नहीं है। इस मॉडल में दोनों अंगों की निश्चित शर्तें होती हैं। न तो विधायिका कार्यपालिका को आसान तरीके से हटा सकती है और न ही कार्यपालिका विधायिका को भंग कर सकती है। संगठन और न्यायपालिका के कामकाज में कार्यकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कार्यपालिका द्वारा न्यायिक नियुक्तियों को वर्तमान में सर्वोत्तम उपलब्धि विधि माना जाता है। कई बार विधायिका के साथ कार्यपालिका महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के पास यह प्रयास करने और न्याय करने का सर्वोच्च कार्य है कि क्या व्यक्ति वास्तव में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है या नहीं। न्यायिक निर्णय के कुशल प्रवर्तन के लिए अपराधी को सजा के पुरस्कार को निष्पादित करना कार्यकारी की जिम्मेदारी है। दुनिया भर के सभी लोकतंत्रों में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। न्यायपालिका विधायिका के साथ निकटता से संबंधित है क्योंकि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून व्यवहार और न्यायालयों द्वारा लागू किए गए हैं। न्यायपालिका में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से सभी लोकतांत्रिक देशों में कानूनों की वैधता निर्धारित की सकती है। भारत में विधायिका की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा किया जाता है। एक सदनीय विधायिका जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, संसद के 2 सदनों में से राज्यसभा को उच्च सभा या राज्यों की परिषद माना जाता है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और राज्य तथा क्षेत्रीय विधायकों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या लोगों का सदन माना जाता है। बहुत बार कई बार कंपटीशन में आता है कि निम्न सदन कौन है, लोकसभा। संसदीय शासन में संसद के पास पूर्ण नियंत्रण और संप्रभुता नहीं है क्योंकि इसके कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हालांकि यह कार्यपालिका पर कुछ नियंत्रण करता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य या तो संसद से चुने जाते हैं या पद संभालने के 6 महीने के भीतर निर्वाचित होते हैं। संपूर्ण रूप से कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे तभी भंग किया जा सकता है जब सत्ता में रहने वाली पार्टी सदन के बहुमत का समर्थन खो देती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब बात करते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लेकर। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रमुख विचारक मॉन्टेस्क्यू है। ये भी कई बार बहुत बार कंपटीशन में आता रहता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देने वाले विचारक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शासन के अंगों को 3 भागों में विभाजित किया। व्यवस्थापिका को कानून बनाने के लिए,
कार्यपालिका को कानून के क्रियान्वयन के लिए और न्यायपालिका को विधि की या कानून की व्याख्या करने या उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए अधिकृत किया। मॉन्टेस्क्यू ने तीनों शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रीकरण के लिए मना किया कि वे तीनों शक्तियाँ एक किसी व्यक्ति के या ग्रुप के हाथ में नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि शक्तियाँ एक या कुछ हाथों में होगी तो इससे सर्वनाश हो जाएगा, अर्थात यह जनता के हित में नहीं होगा। शासन की शक्तियों को अलग रखने का उन्होंने सुझाव दिया। ये भी बहुत बार कई बार सिविल सर्विस वगैरह में आता रहता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसको हमको परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छे से याद करना है। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा तैयार किया गया है। आगे से आप वीडियो को देखते रहिए जिससे आपके सेशन कंप्लीट होते रहें। धन्यवाद।